Hello students, today we are going to discuss next colligative property of our chapter solution. So next colligative property is osmotic pressure. So let's discuss what is osmotic pressure. Before come to the osmotic pressure, first of all we have to have some idea of osmosis. So osmosis को discuss करेंगे, then we come to the osmotic pressure. So first, what is osmosis? It is the phenomena of movement of solvent particle from lower to higher concentration. Solvent particles का क्या होगा? Movement होगा from lower to the higher concentration in a solution. So osmosis क्या है? सॉल्यूशन की एक प्रॉपर्टी है. It's a property of solution, means it will be applied only to the solution. And secondly, there will be movement of the solvent particles from lower to the higher concentration in a solution. For example, if we have a beaker and then we divide this beaker into two parts by using a semi-permeable membrane. ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ये सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स को अलाउ करेगी टू पास थ्रू इट. सपोज वी हैव हियर concentrated copper sulfate solution, and here this side we have diluted copper sulfate solution. So we will see that after some time the dilute, from the dilute only solvent, means only water will start move towards the concentrated copper sulfate solution, and then what happen, by passing through the water into this concentrated from the dilute, what happen, the level rises up until both the levels comes to the equilibrium. मतलब सोलवेंट मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर तब तक होता रहेगा कि जब तक कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट जो है वो क्या नहीं आ जाते, उनकी कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाती. ओके, दिस इज ऑस्मोसिस. ये जो प्रोसेस है ये क्या है? ऑस्मोसिस है. तो इससे हमें एक पॉइंट मिलेगा, थर्ड पॉइंट. फॉर सेकेंड एंड थर्ड, इन दिस वी यूज ए सेमी permeable membrane, and which allow only solvent to pass through it. The fourth one, this movement of solvent can be stopped or it can be reversed by applying
प्रेशर। अगर हम प्रेशर अप्लाई करें तो ये जो मूवमेंट है सॉलिड पार्टिकल्स का, इसको हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ठीक है, इट कैन बी रिवर्स। और ये इसका एक एग्जांपल क्या है, RO। RO जो वाटर क्लीनर होते हैं, ओके, वाटर प्योरीफाई जो होते हैं, वाटर प्योरीफाई में RO जो होते हैं वही होते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। उनमें क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस होता है बाय अप्लाइंग प्रेशर। एंड ओके, सो दिस इज ऑस्मोसिस। इसका एक और एग्जांपल लें। अभी ऑस्मोटिक प्रेशर को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। Suppose we have one beaker and we will take one threshold funnel। ये क्या है, ये शेप क्या है, threshold funnel। ओके, इसे threshold funnel। यहां पर हम क्या लगा देंगे, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, एंड वी विल फिल दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन थ्रेशोल्ड फनल with sugar solution। से हमने फिल किया now, and we'll take water outside the threshold funnel। Now after some time we will see that this level in the threshold funnel start rising up। ये क्या करेगा, राइज करेगा। तो ये जब तक राइज करेगा जब तक कि both the concentration outside and inside the threshold funnel comes to the equilibrium। और जब इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो किसी एक हाइट तक राइज करेगा। तो ये जो हाइट है इंक्रीज किया है यहां से यहां तक, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ये क्या होगा आपका, ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं पाई इज इक्वल टू CRT। C क्या है, कंसंट्रेशन है, R गैस कांस्टेंट है, एंड T इज द टेम्परेचर। पाई इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। C को हम लिख सकते हैं कंसंट्रेशन को N/V। ओके, N is the number of moles and V is the volume। ये क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया ऑस्मोटिक pressure। And now we have some application of osmotic pressure in our everyday life, like we used to sprinkle water on fruits and vegetable। क्या करते रहते हैं, फ्रूट्स या वेजिटेबल के ऊपर अगर पानी डालते रहें, ठीक है, तो वो क्या रहेंगे, फ्रेश रहेंगे। ओके, जो इवापोरेशन से जो फ्रूट्स और वेजिटेबल से वाटर निकला है वो क्या होगा, वापस थ्रू द ऑस्मोसिस थ्रू द स्किन ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, वो इतना ही वाटर क्या होगा, फ्रूट्स के अंदर वापस चला जाएगा, एंड दे रिमेन द फ्रेश। और एक नेक्स्ट 0.9% solution of NaCl। okay, 0.9% solution of NaCl यूज किया जाता है। ओके,
इंजेक्ट करते हैं बॉडी के अंदर, आपने NS देखा होगा, ग्लूकोज वगैरह जो लगाते हैं उसमें NS लिखा होता है, उसमें 0.9% सोल्यूशन ऑफ NaCl। ये क्या है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, मतलब जो हमारा ब्लड है और ये जो सॉल्यूशन है उसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन कौन से होते हैं? दो सॉल्यूशन इन विच बोथ द कंसंट्रेशन इन दी सेम। जैसे अभी देखें कि इक्विलिब्रियम आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आने पर क्या होगा? ये कंसंट्रेशन और ये कंसंट्रेशन क्या होगी? इक्विलिब्रियम, देन इट बिकम आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, सो इस तरह से आपको क्या करनी है, कुछ एप्लीकेशंस पढ़ लेनी है ऑस्मोटिक प्रेशर की, एंड देन यू हैव टू सोल्व सम न्यूमेरिकल्स ऑन द ऑस्मोटिक प्रेशर।